तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ढूंढना आता है? Yes, sir. कैसे ढूंढते हैं? Sum of the roots is minus b by a and product is c by a. Fair enough. I hope everybody is clear. हाँ वेदिका, होता तो अच्छा रहता, आज पता नहीं क्यों नहीं बुलाया. I was free only. Yeah, HP sir का today. Oh, that's why might be. Okay. और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस से रिलेट कैसे करते हैं वो समझा क्या लास्ट क्लास में जो बताया था. ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर. हम लोग वेरिएबल्स यूज करते हैं, ऑफ कोर्स नंबर्स यूज करने की जगह. फॉर सिंप्लिसिटी अगर मैं समथिंग लाइक 3x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है. ओके, नाउ फर्स्ट थिंग, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? A second degree equation. Second degree equation, definitely correct. Can you elaborate it? Yes, Akshat, today is the last lecture of pair of straight lines. Straight lines तो खत्म हो गया पहले ही. हाँ, ये second degree equation is absolutely correct. What more information can you guys comment about this? Passes through origin, has no constant. Passes through origin and has no constant. They are synonyms only. Passes through origin clearly 0 0 substitute करेंगे तो पास कर रहा है. That is also correct. More information, can anybody tell more information about this? और क्या information बता सकते हैं? All this information is correct. तुम लोग as mathematicians comment करो. We can get the roots also by solving the equations. It represents pair of straight lines. Is that also clear? Yes, sir. Multiplication of pair of straight lines. Yes. In fact, second degree homogeneous equation करके एक word introduce किया था last time. Homogeneous क्यों बुलाते हैं इसको? x का पावर y का पावर टोटल हर टर्म में इक्वल है. टोटल जैसे कि यहाँ पे x का पावर y का पावर मिला के 2 है, यहाँ पे भी एक और एक मिला के 2 है, यहाँ पे भी 2 है. So such equations are called as homogeneous. So second degree homogeneous equations represents pair of straight lines. Okay, that is a fact. Okay, like you were saying, we can also factorize this into the pair. Pair मतलब दो, of course, दो lines. We can factorize it into 2 lines. How should I factorize it? One of the traditional सर way, दोनों को पूरे xy इक्वेशन minus को डिवाइडेड बाय 2xy. x से करेंगे x स्क्वायर से. yes, x square से करना is a traditional method. तो 3 टाइम 3 in minus 4 times xy by x square में x x कैंसिल हो गया, y by x बचा, प्लस 2 times y square by x square मतलब y by x the whole square और equals फिर to उसको 0. m से सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर क्वाड्रेटिक यूज करेंगे. क्योंकि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन ना y इक्वल्स टू mx जैसा होता है. सो दैट इज सेम एज सेइंग y by x इक्वल्स टू m. तो बेसिकली 2m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. ऐसे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके m के वैल्यूज मिल जाएंगे. m के वैल्यूज मिलने के बाद बहुत सारी चीजें कमेंट कर सकते हैं. एक बार m मिल गया मतलब बहुत सारी चीजें मिल गई. जैसे कि इस क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड m के वैल्यूज है. दो वैल्यूज मान लेते हैं m1 और m2. दो वैल्यूज अगर m1 और m2 अगर पता चल गए तो फर्स्ट थिंग जो हमें पता चल जाएगा वो लाइंस के इक्वेशन से. एक लाइन है y इक्वल्स टू mx है, एक लाइन y इक्वल्स टू m2x. Another second information that we can comment about this is we can observe and tell what is the angle between two lines. Angle between two lines कैसे ढूंढ सकते हैं फिर? Tan theta formula. tan theta m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. उसी फॉर्मूले को people have done it with the general numbers. 3 4 2 की जगह कोई जनरल नंबर्स, एक सेकंड 2 थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इधर है, जनरल नंबर्स के साथ किए थे. तो इसके साथ किया था तो एक tan थीटा का एक फॉर्मूला जनरेट हुआ. वो फॉर्मूला याद है क्या किसी को? 2 root h square minus ab divided by a plus A b. plus b. This is the formula of angle between two lines. This is the formula of angle between two lines. So pair of straight lines में m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 की जगह directly ये याद रखने के लिए advisable है. Okay, so all this information can be found out. In fact, other than this, do you remember straight lines में how to find angular bisectors?
एंगुलर बाइसेक्टर्स, या देखिए दो लाइंस दे रखे हैं, दोनों के एंगुलर बाइसेक्टर ढूंढना था, एंगुलर बाइसेक्टर ढूंढना था। Sir, we used to drop a perpendicular on the two परपेंडिकुलर, lines. दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इक्वल होते थे। तो इनफैक्ट Yes, sir. ऐसे बेसिकली यहाँ दो लाइंस अगर इंडिविजुअली मिल गए तो इन दोनों का एंगुलर बाइसेक्टर भी पूछ सकते हैं, और एनीथिंग मच मोर इंफॉर्मेशन कैन बी आस्क्ड अबाउट दिस थिंग्स। ओके, तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा और समराइज करूंगा 2 मिनट में। ये मैं एरेज कर दूं क्या? नहीं सर एक मिनट। लिखना है क्या? ओके। इथन लास्ट क्लास एब्सेंट था तो आज का क्लास, अच्छा ओके। और चीजें भी हमने पढ़ी थी यहाँ पे, ये ax square plus 2hx square plus by square equals to 0 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो रिप्रेजेंट करते हैं जरूर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को ना और हमने कैटेगरीज में डिफाइन किया है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को और हमने ये बोला था कि ये रियल एंड डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, या कोइंसिडेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, कोइंसिडेंट या पैरेलल, या इमेजिनरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। वो कैसे पता चलेगा? H square minus AB से। यस, यस करेक्ट, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रियल है कि इमेजिनरी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दैट इज करेक्ट। एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर पॉजिटिव हुआ तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 होगा तो पैरेलल या कोइंसिडेंट, लेस देन ए बी होगा, सॉरी एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी। ऑल दिस इंफॉर्मेशन वाज डिस्कस्ड आल्सो। ओके, हो गया क्या लिख के? बस वो लास्ट पार्ट सर, एक सेकंड। ओके, इसी चीज को फिर से लिखता हूँ थोड़े से ऑर्गेनाइज तरीके से। हो गया क्या लास्ट पार्ट? हाँ सर हो गया। Is Sarth also from this class? Sarth करके कोई स्टूडेंट है क्या? Yes, Sarth Jain। डाउट है तो पूछना। सार्थ लास्ट क्लास अटेंड किया क्या? नो सर आई डिडंट। नहीं सर ओ। नहीं किया था। अच्छा, लास्ट क्लास कितने लोगों ने अटेंड नहीं किया? Ethan और Sarth that I know of. Anyone else? Vedika also was absent last class. So did you guys go through the video of the last lecture? नो सर आई हैव टू एक्चुअली, which is why I asked about it. Okay. What about you, Vedika, Sarth? Did you go through the video of the last lecture? नो सर। अरे, तो तुम लोग को क्या समझ में आएगा आज का लेक्चर? बट फिर भी कोशिश करना थोड़े से। आज एक्चुअली कैलकुलेशन ज्यादा है, एक फॉर्मूले थोड़े से डंप कर दूंगा। फिलहाल तो तुम लोगों को बस फॉर्मूला डंप जैसा ही लगेगा, बट इधर में ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट लास्ट लेक्चर देखना जरूरी है। डू यू गाइस हैव रिकॉर्डिंग? हाँ सर ओके सर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना? हाँ सर। हाँ सर अभी आपने बोला यूट्यूब पे। Okay. For the other students who attended the last class, ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 के बारे में सारे इंफॉर्मेशन फटाफट लिखता हूँ। एक तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है 1। ओके, दिस इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब अगर डायग्राम बनाएंगे तो दो लाइन से दोनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं। इन दोनों लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन ये है। तो इंडिविजुअल लाइंस अगर कोई पूछे तो बेसिकली हम लोग फैक्टराइज करेंगे। सेकंड इंफॉर्मेशन ये है कि इन दोनों लाइंस के स्लोप्स अगर m1 और m2 है तो m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो m1 प्लस m2 m1 m2 बता सकते हो क्या फटाफट? कोई याद है किसी को? माइनस बी बाई एन सी बाई ए। वो तो है क्वाड्रेटिक के लिए। फॉर दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस माइनस 2hy बाई ए माइनस 2h बाई बी। यस, एंड a by b। यस सर। और फिर ये फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल्स टू, ये दो लाइंस जो है इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल होता है थीटा, तो एंगल ढूंढ सकते हैं tan थीटा का फॉर्मूला।
2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। इसके बाद ना दो चीजें कमेंट किया था, अगर एंगल 0 डिग्रीज होगा तो कंडीशन रहेगा, बता सकते हो कि एंगल 0 डिग्री एंगल 90 डिग्रीज के कंडीशंस। सर एंगल 90 डिग्री के लिए हमारा ए प्लस भी 0 था शायद से। यस करेक्ट, तो यहाँ से भी गेस कर सकते हैं tan थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए 90 डिग्री पे, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर 0 होता है। 0 डिग्री के लिए न्यूमरेटर 0 हो जाएगा और एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 और एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। सो दिस इज द कंडीशन, और लेट मी राइट इट इन दिस वे ओनली हर जगह। Okay, so these are the conditions, every information that you should know about straight lines. Okay, so फिर उसके बाद हमने इसको prolong किया था, ax square plus 2hx square plus by square plus आगे और information हो plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 होगा. So it also represents pair of straight lines provided there is a certain condition, but do they pass through origin? No sir. No, these are not passing through origin. तो ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही रहेंगे, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ना कहीं शिफ्टेड रहेंगे। सो इसके ऊपर हमने, तो इसके लिए ना ये चीजें तो सेम ही रहेंगे, ऑल दीज थिंग्स आर सेम ओनली। अच्छा, कहीं पे भी सी आए मतलब वो ओरिजिन से पास नहीं करेंगे, और यस ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, बिकॉज इट शुड मेक सेंस, बिकॉज 0 करूंगा सब्स्टिट्यूट तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं सर, तो c इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो वही बात है, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ओके, दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और डिटेल में करेंगे, देयर इज अ कंडीशन आल्सो, आई विल टेल यू दैट नाउ। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, बट दिस इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन बट शिफ्टेड, तो इनके लिए भी सम ऑफ द स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, एंगल बिटवीन द लाइंस एग्जैक्टली सेम है। ओके, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमने ये किया था, इसके इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइंस ढूंढने के लिए बोला था लास्ट क्लास में, तो हमने फैक्टराइज किया था, एंडिंग का आखिरी आधा घंटा 45 मिनट्स ना बड़े बड़े क्वेश्चंस किए थे, इतने बड़े इक्वेशन को फैक्टराइज किया था। डू यू गाइस रिमेंबर हाउ डिड वी फैक्टराइज इट? Yes sir. कैसे We किया have था? to build it in the form of ax square plus bx plus c, and thus use the factorization formula minus b plus minus b square minus 2ab by 2a. That is correct, Siddharth. Do others also remember how did we factorize it? ठीक है, याद नहीं है लग रहा है, but that was an important part also, how to factorize it into two straight lines. Okay, now वो factorization, अच्छा याद नहीं है, सिद्धार्थ के अलावा और किसी को याद है क्या? How did we factorize? Anybody in the class? Sir. सर मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। क्रिश, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? Sir, I have to ask something. बोलना। Sir, if ax square plus 2gx plus by square represents a second degree equation and they are Right. passing through origin, so they must be belonging to a family of a line also, What? because they have a same point of intersection, no sir? थोड़ा सा slowly. For example, ax square plus 2gx 2hxy plus by square हाँ, ax square. Yes sir, first part only. हाँ. Sir, it ये represents equal a to zero pair कर of the दिया क्या? lines. एक सेकंड, this No equal- sir. Sir, you are telling that it represents a pair of lines, No. and they are Exactly. both of them are passing through origin. एक सेकंड जरा थांबा। ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 represents pair of straight lines passing through origin. So in that case, they will not belong to a family of the line, the two of the lines. Yeah, two lines जरूर belong to family of lines also. Family of lines तो family of lines में कितने lines होते हैं? Infinite lines होते हैं। Yes sir. हाँ, तो pair of straight lines are also small part of family of lines, definitely. Okay. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में सिर्फ दो लाइंस के बारे में डिस्कस करें, फैमिली ऑफ लाइंस में इनफाइनाइट लाइंस को बात किया। ओके, मैं क्या बता रहा था, हाँ वो फैक्टराइजेशन याद नहीं है, और किसी को याद है क्या? ठीक है सर, एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पाऊँ लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है। ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं फटाफट एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, आई जस्ट हैव टू सर्च फॉर इट। जस्ट गिव मी अ मिनट। कोई क्वेश्चन, मतलब नंबर्स अच्छे रहेंगे तो फास्ट फैक्टराइज हो जाएगा। अरे सब इजी वाले हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट अ मिनट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो याद है ना सबको?
Yes, sir. माइनस बी प्लस माइनस वाला फॉर्मूला, दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल. ओके, नाउ ये तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, सेम ही क्वेश्चन हो जाएगा. 2x स्क्वायर प्लस 7xy okay. अभी everybody who was absent in the last class can also follow right now. ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है कि नहीं चेक करना है. एक सेकंड ब्लर हो गया. हाँ, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है कि नहीं चेक करना है. तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में लिख के फिर x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a करके हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे. दैट इज द आइडिया. तो बेसिकली ए एक्स स्क्वायर के साथ, जैसे कि यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है सिर्फ फर्स्ट वाला टर्म, जिसको ऑफ कोर्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर करके लिखा, कुछ खास नहीं. फिर b इंटू एक्स, एक्स के टर्म से ध्यान से देखो, एक्स का टर्म एक 7xy में भी है और एक 8x में भी है. इन दोनों में से x कॉमन निकाल के क्या आएगा, ओके, आई होप यू फॉलो. 7y प्लस 8, मतलब इसमें से x कॉमन निकाला और इसमें से भी x कॉमन निकाला, और बचे हुए सारे टर्म्स को लिख देंगे. बचे हुए सारे टर्म्स है प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेप? Yes. Yes, sir, understood. नाउ नेक्स्ट क्या करूंगा, कैन यू गाइस हेल्प मी आउट इन फिलिंग दिस. क्यों ऐसे किया, ताकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 बन जाए. तो x इक्वल्स टू क्या होगा, कैन एनीबॉडी डिक्टेट? ओके, Sir, we will use the formula. फॉर्मूला ही है. कैन यू अदर देन सिद्धार्थ, कैन एनीबॉडी टेल? क्योंकि सिद्धार्थ को तो याद है. Sir, minus bracket 7y plus 8 plus minus under root 7y plus 8 the whole एक square. सेकंड, उसको स्क्वायर करके बता दे. क्या 49y स्क्वायर मतलब Plus 7y प्लस 8 64 minus 112y माइनस की प्लस. plus 112y. ओके, आई होप अदर्स आल्सो अंडरस्टूड. b स्क्वायर, हाँ, माइनस Minus 4 multiplied by वो भी 3y बता दे, square वो भी plus बता दे. 4y. 4 मल्टीप्लाई करके बता दे. 4 3 12 ऐसे. ये समझा क्या? क्या सर क्या? को वैसे भी पूरे 2 से मल्टीप्लाई करना ही है, वापस ब्रैकेट में डाल दो. ओ 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 भी कर लेंगे ना. तो ये क्या हो जाएगा, 24y स्क्वायर 112y माइनस 64. ठीक है, ओके, डिवाइडेड बाय 4. 4. ओके, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस ऑफ 7y प्लस 8 प्लस और माइनस रूट ऑफ क्या आएगा, 64 कैंसिल हो गया, वेरी वेरी लकी. 112y भी कैंसिल हो गया. 49 माइनस 24 25y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. 25y स्क्वायर हो गया, एक बार प्लस 5y माइनस 5y. तो हमें दो एक है, x इक्वल्स टू माइनस 7y माइनस 8 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 4, और दूसरा वाला प्लस 5y की जगह माइनस 5y लिख देंगे. फिर लाइन मतलब वी कैन मेक इट लुक नाइस, बाय 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x फिर प्लस 7y, मतलब जो भी रहेगा दैट यू कैन डू. 4x plus 2y is equals to minus 8 or something. So that is how we got the equation of a straight line. तो factorize करना सबको समझ आ रहा है ना, everybody? Sir, that's got understood. Now the thing is, now the new thing which everybody should understand, which was not taught in the last class. Now यहाँ पे straight line मतलब यहाँ पे 2 7 3 8 14 ये जो numbers है, they should be in such a manner that हर बार रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए. रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड व्हाई? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं आया तो x इक्वल्स टू वाई प्लस रूट वाई कुछ तो आ जाएगा. रूट वगैरह अगर आ गया तो वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा. तो अगर ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करे तो नंबर्स इस तरीके से होना चाहिए कि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए. डिड यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir, understood. Yes. Now- Sir, Yes.
Sir, you took minus root of 25y square in the as x के लिए, or you only took plus 5? No, I have to take 2 plus minus. I have to take the second one on also. So since I okay. was revising, I was lazy enough not to do that. Okay, then it's fine. Now ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. ये इतना मतलब अभी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इट सीम्स वेरी वेरी टफ, बट दिस वेरिएबल्स के चक्कर में एक फॉर्मूला जनरेट होगा. तो जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट्स बीइंग 2, 3 and 14 और समथिंग, तो वो कोएफिशिएंट्स इस तरीके से रिलेट होना चाहिए. तो इसको भी हम लोग फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो एक गंदा सा इक्वेशन आएगा. तो बेसिकली उस इक्वेशन में x के अंदर रूट ऑफ समथिंग आएगा, तो विल मेक श्योर दैट इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर बना मेक श्योर होने के लिए a b c h g f में एक रिलेशन ढूंढा. तो बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि if this represents pair of straight lines, then there is a huge condition ओके. तो ऐसा करके कुछ कंडीशन है. तो इस कंडीशन को भी ऑफ कोर्स पीपल हैव मेड इट लुक नाइस एंड राइट इट एज ए. एक डिटरमिनेंट को बनाया ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ. दिस डिटरमिनेंट शुड बी 0, देन ओनली दिस विल रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. तो ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, दिस इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. तो इसको पहले कॉपी कर लो. इफ दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, देन दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0. अभी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करना है सबको पता है क्या? Do you guys know how to expand the determinant? नहीं पता वेदिका. अच्छा सर एक बार एक्सप्लेन कर दो ना, भुला गया हूँ. ओके. जैसे कि इसको हाँ एक्सपेंड सर, करो, याद नहीं आ रहा. तो अभी देखो फर्स्ट ए नंबर को पिकअप करना. फर्स्ट नंबर है यहाँ पे ए इंटू तुम लोग क्या करना, एक ए वाला रो और कॉलम को छोड़ दो. ए वाला रो और कॉलम को छोड़ दो और बाकी नंबर्स को लिखो. ए वाला रो एंड कॉलम को छोड़ दिया मतलब बचेगा क्या? ए वाला रो एंड कॉलम उसको छोड़ना है. यू हैव टू स्किप दैट पार्ट. तो रिमेनिंग चीजों को लिखना है. रिमेनिंग चीजें हैं ये बी एफ एफ सी. ठीक है. इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू विच आई विल सून एक्सपेंड. फिर माइनस आएगा नेक्स्ट नंबर का माइनस एच इंटू एच वाला रो और कॉलम को छोड़ दो. बचे हुए नंबर्स एच एफ जी सी, इसका डिटरमिनेंट. ठीक है. फिर नेक्स्ट वाला एच का नेक्स्ट नंबर विच इज ऑफ कोर्स जी प्लस जी इंटू डिटरमिनेंट. किसका डिटरमिनेंट होगा बता सकते हो क्या? HBGF. HBGF is correct. Now इसको this is just a small way to write. इसको और आगे लिखना a into इसका multiplication BC minus F square minus H into HC minus GF plus G into HF minus BG. तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक रिलेशन मतलब कुछ कंडीशन आएगा. तो ये वाला स्टेप स्किप करके पीपल ट्राई टू प्रैक्टिस डायरेक्टली a इंटू उसका x की तरह मल्टीप्लाई करना है. इधर जैसे भी हो पहले इसको लिख लेना. The formula ends here. I'll show you how questions will be asked. एक क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस भी कर लेंगे. Write it down. इसके साथ कंपेयर करना है गिवन क्वेश्चन को और एक डिटरमिनेंट का वैल्यू पुट करना है. एक क्वेश्चन करते हैं, it will fall into place. Okay. Do you guys have? Are you guys in CBSE or HSC right now? Sir, HSC board. Okay. Everybody in the class? No sir, CBSE. Okay. How many of you are from CBSE and how many of you are from HSC? कैसे पता चलेगा? Okay. Second type का question जो मुझे पूछना तुमसे है कि do you guys have NCERT textbook or HSC textbook at home? Did you guys buy it? Sir, I don't have HSC, but I have NCERT. Okay. Especially HSC students, do you have HSC textbooks? अगर नहीं है तो खरीद लो, सिंपल सी बात है.
11th स्टैंडर्ड के भी 12th स्टैंडर्ड के भी, दोनों भी खरीद लो। अभी खरीद जिनके पास ऑलरेडी है एनसीईआरटी है, मतलब एनसीईआरटी तो मस्ट है, एवरीबॉडी शुड बाय एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एचएससी स्टूडेंट्स हो या सीबीएसई स्टूडेंट्स हो। अभी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एचएससी टेक्स्ट बुक का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चैप्टर खत्म करना है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है आफ्टर टुडेज क्लास। तो if anybody cares, then if you have a textbook, you can put the photos of that on the WhatsApp group so that it will be beneficial for all. ठीक है, आज का होमवर्क वही है कि वो दोनों टेक्स्ट बुक से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस खत्म करना है, फिर उसका नेक्स्ट वीक का फुल होमवर्क विल बी फ्रॉम मॉड्यूल। सर कौन से दो टेक्स्ट बुक है? स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक और सीबीएसई टेक्स्ट बुक। ठीक है Sir, actually, I haven't found anything as pair of straight lines in NCERT book till now. it must be in 12th then. Yes, sir, because whatever we have discussed, it was on the straight line part. Even in Nothing HSC new also, is I there. think it is in 12th. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस उसमें 12th में पढ़ाते हैं, हम लोग 11th में कर ले रहे हैं। नो सर, ये स्ट्रेट लाइन है पेयर ऑफ पार्ट स्ट्रेट लाइंस 1 है क्या? में, कोर्स पेयर ऑफ वाले में स्ट्रेट लाइंस है। है क्या? नहीं स्ट्रेट सर, लाइंस सिर्फ स्ट्रेट लाइन है। हाँ वही मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहा हूँ, शायद वो 12th में रहेगा। Well, doesn't matter. Have you guys copied this? Yes, sir. सर अगर आपके पास हो तो आप ग्रुप पे पिक्स भेज देना नहीं ना, यार, मैं सॉल्व कर अभी लेंगे। ढूंढ रहा था एक्चुअली क्लास के पहले, मेरे पास नहीं था। बट स्टिल डोंट वरी, मैं होमवर्क तो मॉड्यूल से दूंगा ही, अगर लेकिन कभी ना कभी तुम्हें खरीदना ही है। ओके, जल्दी बताओ, आर यू गाइस डन राइटिंग? सबका हो गया क्या एवरीबॉडी? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, done. First question, find the value of lambda, find the value of lambda, find the value of lambda if lambda x square plus 10xy plus 3y square minus 15x minus 21y plus 18 equals to 0 represents a pair of straight lines. Find the value of lambda if this expression represents a pair of straight lines. Find the value of lambda if this equation represents a pair of straight lines. That is the question. Okay. ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे क्या, या तुम्हें ये क्वेश्चन ही ट्राई करना है? यही कर लेते हैं, ट्राई करते हैं। सर पहले कर लेता हूँ। Okay, fair enough. Formula is absolutely on the board only. I'll slowly help you. I'll give you 30 seconds time to digest question क्या है। जो लोग absent थे last class, वेदिका, सार्थ, ईथन, you guys can also follow this. Find the lambda, find the value of lambda if this represents pair of straight lines. और फॉर्मूला देखो और इमिटेट करो। If this represents pair of straight lines, then this condition. This condition पहले ABC symmetrically ऐसे diagonal की तरह लिखना है, फिर HGF. इसको याद रखने के लिए पीपल कुछ कुछ निमोनिक्स बनाते हैं, स्टूडेंट्स ही बताते हैं, मतलब इट्स लाइक ए मतलब ऐसा एक निमोनिक मतलब समझ में आता है ना? निमोनिक मतलब सम सेंटेंस थ्रू व्हिच यू कैन रिमेंबर a complicated thing. ठीक है, मतलब ऐसा कुछ तो था एक, मतलब इट्स इजी टू रिमेंबर आल्सो, ऐसा कुछ है कि a hot girl having boyfriend goes for coffee, ऐसे करके याद रखते थे स्टूडेंट्स। इधर है, फॉर दोज हु आर ट्राइंग टू सॉल्व, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है
तो फर्स्ट थिंग ए का वैल्यू लैम्डा है, एच का वैल्यू कितना है, कैन यू गेस टेल? एच का वैल्यू 5. 5 है, वो इंपॉर्टेंट है, एच का वैल्यू 5 है। ये 2h(x,y) है, ये 10 है। यहाँ 2h का वैल्यू 10 है, एच का वैल्यू 5 है, तो बी का वैल्यू 3 है। जी और एफ भी केयरफुली लिखना, जी एफ एंड सी। कैन एनीबॉडी केयर टू टेल जी एफ एंड सी? Sir, G 15 by minus 2, 15 by 21 by 2. 2 and 18. 15/2 की -15/2? -15 by 2, sir. -15/2, -21/2 and 18. Oh, very complicated values, but still let's go for it. Next, अभी तो फिर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो आई जस्ट राइट डाउन द डिटर्मिनेंट नाउ। Determinant of A, B, C are in the diagonals, lambda 3 and 18. फिर H, फिर G, सिमेट्रिकल है ये वाला, और ये -21/2। इसको अभी एक्सपेंड करना है, तो फर्स्ट होगा लैम्डा इंटू ट्राई करो, लैम्डा इंटू किन को मल्टीप्लाई करना है? कैन एनीबॉडी टेल मी लैम्डा इंटू क्या होगा? 18 into 3 18 इंटू minus 441 by 4. 54 माइनस 441 by 4. 441/4। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? -5 in bracket 5 into Yes. 18. Notice this -5, guys. Notice this minus sign. 5 into 18, which is how much? Uh, 15 into 21 by 4. कितना होगा वो? 18 315 by 4. Thank you. लास्ट वाला देखो, करेक्ट लिखा गया मैंने। हाँ सर करेक्ट है। -15/2 टाइम्स -105/2 प्लस 45/2 हो गया। इसका वैल्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी थोड़ा सा और कैलकुलेशन से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 टाइम्स, किसने सिंप्लीफाई किया क्या फ्रैक्शन को? 225/4. कितना? 25/4. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव में सर, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा। ओके, माइनस। हाँ। आगे भी किया क्या? सर 45/4 पॉजिटिव में। थैंक यू। फिर 5 into 45 भी कितना हो गया? 225 हो गया। लास्ट वाला भी बता सकता है क्या? -30. माइनस की प्लस? -30 सर, -30। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस नहीं हो गया? सर ब्रैकेट ओपन नहीं किया है। -15 by 2 into ब्रैकेट में -30. ओ 30 इंटू वो कर लो ना, मल्टीप्लाई 15/2 को भी मल्टीप्लाई कर दो। 225 पॉजिटिव। 225 पॉजिटिव, तो 225 कैंसिल हो गया। 225 कैंसिल हो गया, तो माइनस लैम्डा सर लैम्डा की वैल्यू तो 0 आ गई फिर डायरेक्टली। नहीं, कैसे? -λ/4 -1/4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 0 कैसे आया? लैम्डा का वैल्यू 3 आ रहा है मुझे तो।
सर मुझे भी। चेक करो। इधर है, एक और क्वेश्चन देता हूं, दैट क्वेश्चन इज फॉर यू गाइस टू ट्राई नाउ, आंसर करके बताना। सिमिलर क्वेश्चन है, बेसिकली सेम टू सेम क्वेश्चन है, नंबर्स चेंज होंगे, जस्ट फॉर प्रैक्टिस से आई एम गिविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? एनीबॉडी इन द क्लास? No, sir, no doubt. ओके, ओम, अनिल, भव्या, किसी को भी डाउट है तो बताओ। गायत्री, ओके, नियति, साक्षी, डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट सर क्वेश्चन। मेरा आंसर तो अभी भी रॉन्ग ही आ रहा है। ओ, चेक करना बाद में कैलकुलेशन। सर 22/4 22/4 वो सब ऐड सब्ट्रैक्ट वो सब नहीं हो जाएगा? लास्ट में सिर्फ 225 है। अगर सब कैंसिल नहीं होना चाहिए यार, कुछ तो है, बाद में चेक कर ले कैलकुलेशन के साथ जो है ना वो वाला बच रहा है और बाकी दो कैंसिल हो रहे हैं। क्या फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस लैम्डा इंटू 225/4। यस सर, और बाकी -225/4 प्लस 225/4। नहीं, लास्ट वाले में बाई 4 नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ सर मैंने एरर कर दिया यहाँ पे। ओके ओके, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बस। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x square minus 3xy plus 2y square plus 3x minus 5y plus k equals to 0 represents pair of straight lines. Find the value of k if this represents pair of straight lines. Find the value of k if x square minus 3xy plus 2y square plus 3x minus 5y plus k equals to 0 represents pair of straight lines. Is the question clear to everybody? किसी को कैसे करना है नहीं समझ आ रहा है तो दिस इज द लास्ट टाइम दैट यू कैन आस्क। Okay, do you guys need help or do you guys need time? Time, sir. We'll do Sure. it. Sure.
ऐसा आना चाहिए एक्सप्रेशन, कंफर्म कर लो या मेरा गलत है तो बताओ। सर आपका करेक्ट है। ओके, के का वैल्यू आया क्या? नहीं सर। सॉल्व कर रहा हूँ। ओके तो सॉल्व करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। सर -86 है क्या? वो वहाँ पे हम +3/2 होना चाहिए ना थर्ड वाले टर्म में। इथन you're right। और किसी का आंसर आया क्या? Anybody else who got the answer? सर वो थर्ड वाले टर्म में +3/2 होना चाहिए ना ब्रैकेट से पहले। माइनस ऑफ -3/2 +3/2 थर्ड वाले में नहीं। oh Yes, yes sir. yes yes करेक्ट थर्ड वाले में आंसर के +3/2। क्या आ रहा है के का वैल्यू? के का वैल्यू 2 आएगा। ओके, आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर मतलब रेस्ट ऑफ द टाइम फॉर होम। क्या सॉल्व करके दिखाऊं क्या? किसी को जरूरत है क्या? सिद्धार्थ इज राइट। और किसी का आया क्या आंसर? पता नहीं सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। ओके जी, नील बताया करो। आया तो भी बताओ, नहीं आया तो भी बताओ। आया और नहीं बताया तो टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं आया और नहीं बताया तो तुम्हारा जेन्युइन टाइम वेस्ट हो रहा है, दोनों भी कैसे भी। ओके, इधर है नेक्स्ट वन एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। लास्ट क्लास में गया था, जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी से मैं एक और बार करा रहा हूँ क्योंकि किसी को अच्छे से याद नहीं है लास्ट क्लास का लेक्चर, बट स्टिल राइट ऑन। इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस if the angle between the two lines represented by 2x square plus 5xy plus 3y square plus 7y plus 4 is equals to 0 is tan inverse m is equal to 0 is tan inverse of m. Then find m. The angle between the two lines is tan inverse m. Find the value of m. For those who were absent in the last class or could not understand in the last class, the formula that we are going to attempt to use right now is, for the pair of straight lines,
ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c, ये हमेशा रटना है और देख के कंपेयर करके फिर एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला ये था tan theta equals to modulus of 2 root h square minus ab divided by a plus b. जल्दी करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज करो एंड डू इट फास्ट. इस क्वेश्चन में थीटा दे रखा है tan इनवर्स ऑफ m. tan इनवर्स ऑफ m, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ m, मतलब लेफ्ट हैंड साइड m ही बन जाएगा tan थीटा. तो ये राइट हैंड साइड का वैल्यू इवैल्यूएट करो, स्पीड बढ़ाओ. हो गया तो आंसर बताओ. So I'll wait for Siddharth, Ethan, Janil, who have answered last time. If anyone else wants to be a participant, you are more than welcome. हाँ सर, मुझे एक आंसर आया पर श्योर नहीं वो सही है या नहीं. उसमें क्या है, बोलना फिर. हाँ सर, वो मॉड में है तो वो लिख नहीं पाऊंगा, फिर बोलना ही होगा. मॉड मतलब अच्छा नंबर नहीं आया क्या, रूट रूट में आया नो क्या? सर, अंडर रूट में बहुत ऐसा नंबर आया कि उसे मतलब ब्रेक नहीं कर सकते. फ्रैक्शन है आंसर. ये सर मेरा भी फ्रैक्शन में है. क्या है फ्रैक्शन? हाँ सर फ्रैक्शन. 2 अंडर रूट 19/5. अंडर रूट 19/5 नहीं है, रैशनल नंबर आएगा. सर हाँ सर मेरे को m tan इनवर्स 1/5 है. हाँ, m is only 1/5. That's right. सर tan इनवर्स. tan inverse नहीं, tan inverse अच्छा, हाँ, नहीं रहेगा. वो हाँ सर, मुझे भी m is equals to 1/5. अबे क्या इतने जल्दी इधर है, समझा ना. tan इनवर्स नहीं रहेगा, थीटा की जगह tan इनवर्स m डाला तो फॉर्मूला होगा tan of tan इनवर्स m इक्वल्स टू, फॉर्मूला डंप करो, 2 root h square minus ab upon a plus b. Just do it guys, faster. H is Okay, got 5 it, by sir. Understood. divided by a plus b. Okay, what about others? Those, anybody else who wants to tell the answer or verify if we are right? Or do you guys need more time to solve it? 2/5 और 1/5. 2/5 क्यों 1/5? तुझे क्या आ रहा है? सर मेरा तो 2/5 ही आ रहा है अभी भी. 2/5 कैसे आया? हाँ सर, because 6 4 are 24, 25 minus 24 is 1/4, that is 1/2. Oh sir, that will be 1. Yes, 2 भी आ गया. Anyone else who is? Can you solve ahead, Janil? तो क्या होगा, 2 times under root of, ये हो गया 25/4 minus 2 3s are 6 divided by 5. LCM ले, 25 minus 24 which is 1. रूट के अंदर 1/4 आएगा. देखना अभी दिख रहा है, रूट 1/4 is half, 2 and half कैंसिल हो गए. तो tan of tan inverse is m equals to 1/5. Okay, anyone else who has any doubt? Okay, एंगल बिटवीन द मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का एंगल के बारे में एक फॉर्मूला था, और वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेगा क्या उसके लिए एक फॉर्मूला था, वो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0. नाउ नेक्स्ट, उस डिटरमिनेंट को डेल्टा करके बुलाते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू 0 व्हाटएवर यू कॉल इट. नाउ नेक्स्ट वन, अभी ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy, अरे उसके पहले मुझे कुछ पूछना था. ठीक है, वो थोड़ी देर के बाद बताता हूँ. ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. इतना बड़ा इक्वेशन है. अभी इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना आता है क्या? करने के लिए पूछ नहीं रहा, आता है क्या फैक्टराइज करना? कैसे करेंगे फैक्टराइज? सर वही जो आपने दिखाया सर था इन द वो सेंस जो- जो इक्वेशन निकालना होगा बिगिनिंग ना, ऑफ द क्लास में जो दिखाया था, परफेक्ट क्वाड्रेटिक बना के एंड ऑल.
तो फैक्टराइज करके दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ सकते हो क्या? Yes, sir. यस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ हाँ सकते सर, हैं। इक्वेट करके तो उन दोनों को। दोनों को सॉल्व करके, यस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ सकते हैं उन दोनों को सॉल्व करके। तो वही चीज तो पीपल हैव डन व्हिच आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज़ ऑफ टाइम वेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस ए बी सी जी एफ सी के रख के उन्होंने सॉल्व किया और बड़ा सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आया। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा है फॉर्मूला, ये याद नहीं होता बट फॉर्मेलिटी मेरा बस काम है बताने के लिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये फॉर्मूला निकल आता है। पहले तुम लोग इसको लिख लेना, हम लोग इसको याद नहीं रखेंगे। हम लोग विल फाइंड देयर इज एन अल्टरनेट मेथड विदाउट फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो मैं अभी बताता हूँ। पहले इसको लिख लेना, राइट डाउन। सर ये सिर्फ दो इस इक्वेशन के लिए क्या सर? यस, Point ये of- क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दो लाइन रिप्रेजेंट पेयर करता है। ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ मतलब पेयर ऑफ लाइंस, दो लाइंस, ये दो लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स ये है। ओके सर। ठीक है, तो मतलब ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो यू हैव ए मेथड, यू कैन फैक्टराइज इट, फाइंड द टू लाइंस एंड सॉल्व देम। ओके, पहले इसको लिख लो। आई सर, विल ये शो पूरे यू। चैप्टर में खाली लेंदी कैलकुलेशंस ही है क्या? यस, दैट्स इट। ये चैप्टर जेई एडवांस में नहीं है, ये चैप्टर जेई मेन में है और एचएससी सीईटी में भी है, बिट्स में भी है, सिर्फ जेई एडवांस में नहीं है। और ज्यादातर 12th में कराते हैं। ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो भी चलेगा, बस एक जगह लिख लो। बाद में एग्जाम के पहले कभी भी रिवाइज करोगे तो झट से रिवाइज हो जाएगा। दो लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, दो लाइंस सेकंड डिग्री रहेगा। कभी भी अगर अटक गए इस क्वेश्चन में तो दो लाइंस इंडिविजुअली सॉल्व कर लो और स्ट्रेट लाइंस चैप्टर की तरह कर लो। एंगल बिटवीन द लाइंस हो या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस हो, तो दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व भी कर लो। ओके, हो गया लिख के? आर यू गाइस डन? यस सर। Okay, now this is the point of intersection ka formula. There is another method which will just अच्छा ठीक है, I'll tell you the method after a particular question. Write down, find the point of intersection, find the point of intersection of the straight lines, find the point of intersection of the straight lines represented by 2x square minus 7xy minus 4y square minus x plus 22y minus 10 equals to 0. Find the point of intersection of the lines represented by this equation. Find the point of intersection of the lines represented by this. Compare करो और use करो. You guys need help? नो सर। नो सर, नो सर, सर। मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट का आंसर भेजा है चैट बॉक्स में। एक सेकेंड। नहीं सिद्धार्थ, इंटीजर आता है।
जी एफ और एच ना उसका आधा होता है, वो केयरफुली करना। किसी का इंटीजर आया क्या? सर बस एक सेंड कर रहे हैं। ओके ओके, I'll wait for a minute more. सर फर्स्ट आ गया, फर्स्ट का शायद 1 है क्या? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट 1 नहीं है, बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रहे हैं। क्या हुआ कैलकुलेशन यहाँ पे? -7/2 into 11 minus b, ऐसा आना चाहिए, बहुत ही खतरनाक सा है बट स्टिल होगा। -77/2 -2। सर मेरा कुछ अजीब सा ही आ रहा है। डिनोमिनेटर कितना हुआ 75 के? -8। डिनोमिनेटर 81/4 -81/4 आना चाहिए सबसे पहले तो। डिनोमिनेटर करेक्ट आया क्या -81/4? यस हाँ सर। सर। सर और वो न्यूमरेटर भी ऐसे अपॉन 2 रहता ना, तो 4 को कट कर सकते हैं इनटू हाँ, माइनस न्यूमरेटर 2। पहले वाले में -81/2 आएगा, चेक करो। ये आने चाहिए फ्रैक्शंस। सर फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 है। दैट इज राइट। सर फर्स्ट ओके कोऑर्डिनेट मेरे को वेदिका, 85 And अपॉन second one, 81/2 आ रहा है। 85 नहीं 81 ही आएगा न्यूमरेटर में। 85 की जगह 81 आएगा, चेक कर। तूने 4/2 को 2 लिख दिया या 4 सर ये 77 -2 आएगा ना? 77 -4/2। -77 -4 -81 -77 -4 आएगा। पता नहीं आया कि नहीं। सर सेकंड का 1 है क्या? सेकंड वाई कोऑर्डिनेट। दैट इज राइट सिद्धार्थ। बता इथन क्या बोल रहा था? सर वो अभी सर क्या वो -7xy है ना सर, उसका तो वो तो 2h रहता है ना टेक्निकली, तो shouldn't it be H like this -77 अपॉन 2 -4 वैसा? तो फिर तब हाँ हाँ -77 85 अपॉन 2 कुछ आता है। एक सेकंड कैसे, 85 अपॉन एक सेकंड थोड़ा स्लोली बता ना। -77/2 फिर आगे क्या बोला तूने? -77 अपॉन 2 -4। -4 कैसे? -2 है, 4 into -half। पता नहीं सर धीरे माइनस धीरे। बीजी नो तो। हाँ b कितना है? -4 है, हाँ और g इज -half। -1 हाफ g की is तरह। -half, 2gx is -x। अच्छा ओ ओके ओके गॉट इट, थैंक यू सर। ओके, वेदिका आंसर आया क्या? वाई कोऑर्डिनेट। व्हाट अबाउट यू गायत्री, सार्थ?
डॉट इज पूछो आयुष हर्ष तू वही हर्ष है क्या जो पहले बहुत डाउट पूछता था ऋषांक आया तुम लोग भी इधर है the answer should come out to be 2,1 guys the answer should be 2,1 इधर वे I wanted to show something else to you guys सबसे पहले since this ठीक है ये क्वेश्चन हो या ना हो doesn't matter there is an alternate method which I wanted to focus I'll tell you that right now तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद रखना मुश्किल होता है इसीलिए देयर इज एन अनदर मेथड दैट मेथड का डेरिवेशन विल स्टडी इन 12th सर का स्टैंडर्ड सेकंड पार्ट का आंसर नहीं आ रहा ओ 1 आना चाहिए यार ऊपर भी 81/4 नीचे भी 81/4 आएगा विद नेगेटिव साइंस डिनोमिनेटर तो -81/4 ये सेम न्यूमरेटर बता जी फिर आगे 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 कृष okay now the alternate method is partially differentiate with respect to x partially differentiate with respect to x सबसे पहले you guys know differentiation x square का differentiation क्या है 2x 2x okay partial differentiation have you guys encountered in any other subject no sir you haven't encountered partial differentiation before no sir okay now partial differentiation with respect to x में so this is only a method to find the point of intersection ये method नहीं समझ में आया तो there is a formula which I just discussed partial differentiation with respect to x में y is treated like a constant 3 4 5 6 जैसा है y तो partial differentiation with respect to y x करेंगे तो can you guys help me out पहला इसका डिफरेंशिएशन 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x. कितना होगा 4x 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x नेक्स्ट 7xy का डिफरेंशिएशन चाहिए y is like a constant like 7y 7 only तो 7y into x है तो 7y is a constant तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -7 -7y understand 7y. guys y is treated like a yes constant sir yes sir yes sir नेक्स्ट 4y स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन -8y जीरो है नहीं जीरो है क्यों yes sir -8y into 0 y 0 हाँ y इज ए कांस्टेंट है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो है ठीक है तो 4y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो है नेक्स्ट -x का डिफरेंशिएशन -1 -1 22y का डिफरेंशिएशन 0 जीरो और 10 का डिफरेंशिएशन 0 जीरो तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया हमने उसको इक्वल टू जीरो करना फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y भी करना पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y में इट इज इतना तो लॉजिक है तुम्हारा विल ट्रीट x एज ए कांस्टेंट तो लेट अस ट्राई टू मतलब इनफैक्ट कैन यू गाइस गाइड मी x को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट कर रहे हैं x को कांस्टेंट मान रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है जीरो y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज ए कांस्टेंट जीरो इसका डिफरेंशिएशन क्या है -7x -7x वेरी नाइसली डन नेक्स्ट वाले का -8y -8y आई होप अदर्स आर आल्सो फॉलोइंग 2 आ गया फिर x का डिफरेंशिएशन 0 0 22y का डिफरेंशिएशन 22 22 और 10 का डिफरेंशिएशन तो 0 है पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करो और इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द पॉइंट 2,1 दिस इज अ मेथड टू फाइंड point of intersection partial differentiation with respect to x with respect to y and solve them वो complicated formula याद रखने का मन नहीं करे तो ये मेथड है दिस इज लाइक मेथड 2 ओके मेथड 2 के बेस पे एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं मैं पहले इस क्वेश्चन को लिख लो मतलब इस मेथड को लिख लो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम क्वेश्चन था सेकंड मेथड है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बोथ x एंड y करके सॉल्व करेंगे
सर क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से नहीं सॉल्व किए जा सकते? कौन सा क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ सर, एक जनरल क्वेश्चन है विच इज फॉलोइंग द पैटर्न ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ढूंढना क्या है वो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वो तो सिंपल क्वाड्रेटिक ही सॉल्विंग है, उसमें डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन तो मिनिमम मैक्सिमम वर्ड्स आते हैं तो एडवाइस करते हैं। या ग्राफ देखना हो तो इधर है, ये हो गया लिख के। अदर्स सर बस सॉल्व कर रहा था बस। अच्छा सॉल्व करो मत, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। let me dictate the question, next one। बताओ या वेट करूं। सर बस 1 मिनट। ओके ठीक है, जरूर बता देना लिख के फिर। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर कॉल्ड सर्कल्स। तो स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और सर्कल से तीनों कॉम्बिनेशन है। स्ट्रेट लाइंस का कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है बस। और सर्कल चैप्टर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के ऊपर ही ज्यादा डील करेंगे हम लोग। और सर्कल्स के चैप्टर में थोड़ा सा डायग्राम, ज्योमेट्री वगैरह हल्का सा आएगा। ओके हो गया क्या इथन या जिसका भी। सर 1 सेकंड बस खत्म हो गया। 10th स्टैंडर्ड का सर्कल्स में सिर्फ डायग्राम्स बना के एंगल और इक्वल एंगल्स, एंगल इन ए सेगमेंट इक्वल है वैसे करके थ्योरम्स प्रूव करने वाले थे वेदिका। लेकिन ये वाले चैप्टर में ना हम लोग इक्वेशन के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। जैसे स्ट्रेट लाइंस में y इक्वल्स टू mx प्लस c इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, ऐसे इक्वेशन ऑफ ए सर्कल करके भी कुछ होता है, तो हम लोग उसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे। तो एक्चुअली इट्स नॉट ज्योमेट्री, इट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर डन। Okay, right on guys. Now try to solve using this method, partial differentiation wala method. Find the point of intersection. Find the point of intersection of the straight lines. Find the point of intersection of the straight lines. 2x square plus 7xy plus 3y square plus 8x plus 14y plus 8 equals to 0. Find the point of intersection of the straight lines written on the board. 2x square plus 7xy plus 3y square plus 8x plus 14y plus 8 equals to 0. इनका for point of intersection है। I want you guys to solve using method 2. Method 1 was formula, which we are not using for the practice sake. Exam में you have a choice.
Sir, I'm getting x as -2 and y is 0. That is right, Ethan. It would be great if you'd have texted me. Oh, Sir, sorry, sir. I'm also getting the same answer. That is right, Siddharth. दो लोगों का हो गया. Let me wait for 2 more minutes or 1 more minute. Others, do you need some help or do you need some time? Partial differentiation से किया क्या Ethan और सिद्धार्थ? Yes, sir. Yes, sir, I'm getting it. देखो partial differentiation with respect to x करेंगे तो we should get 4x plus 7y plus 8. ये चैप्टर फॉर्मूले याद हो गए तो बहुत ही इजी लगता है, वरना बहुत टफ लगता है. Okay guys, बाकी लोग कोई बता ही नहीं रहे. I don't know Jinil and all if you're solving. First वाला 4x plus 7y equals to 8 equals to 0 आएगा. Second वाला कुछ तो 7x plus 6y plus 14 equals to 0 आएगा. दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करना सबको आना चाहिए. उसमें किसी को डाउट नहीं है ना? इधर है. One last इधर है. The answer is -2, since others are not replying, I am moving ahead. Solve करना है इन दोनों को simultaneously. Also understand Ethan and Siddharth, those guys done. These two are not the individual lines of this pair of straight lines. Individual lines ढूंढना है तो फिर वो quadratic बना के ही solve करना चाहिए. ठीक है? This is just to find the point of intersection. These two are something else only. Okay. Next, one last part of pair of straight lines, the last concept. Pair of angular bisectors. Equation of pair of angular bisectors. Of ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 is this once again a formula only at your level, but फिर भी अगर भूल गए तो what is the idea कि इसको solve करेंगे तो हमें दो lines मिलेंगे y equals to m1x और y equals to m2x. We can also write it as m1x minus y equals to 0 and the other line as m2x minus y equals to 0. दो straight lines के equations दे रखे हैं तो angular bisector का equations कैसे ढूंढते हैं? Modulus of ax1 plus by1 plus c upon root of a square plus b square. वो याद है क्या? Yes, sir. Perpendicular bisector formula. Yes. इसका मॉड्यूलस इक्वल्स टू इसका मॉड्यूलस करके मॉड्यूलस रिमूव करके फिर प्लस माइनस साइन लगा सकते हैं एंड वी आर गोइंग टू गेट फ्यू ह्यूज इक्वेशंस. दो एंगुलर बाइसेक्टर्स आएंगे, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स. तो पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स का जो है डायरेक्टली एक फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ. फॉर्मूला इज इजियर टू रिमेंबर इट इन दिस मैनर एक्चुअली. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय a minus b equals to xy divided by h. This is the pair of angular bisectors. This is symmetrically written so that it is easy to remember, but actually technically correct way ये है h into x square minus y square cross multiply किया, इसको भी cross multiply करके left side लिख के minus a minus b into xy equals to 0. This is the formula of pair of angular bisectors.
राइट इट डाउन, राइट डाउन द फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगुलर, बस इतना याद रखो, ये फ्रेज दिखे तो ये फॉर्मूले यूज करना है, एनी वन ऑफ देम विल डू। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट फॉर्मूला है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के फॉर्मूले अगर सारे मैं एक साथ बता दूं तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के फॉर्मूले ऐसे है बेसिकली, एक है डेल्टा वाला, ये वाला एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, और एक फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ये फॉर्मूला है। इसके आगे इसके एडिशनल से ये है कि a प्लस b 0 होगा तो थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा h स्क्वायर इक्वल्स टू ab होगा। तो फिर उसके बाद रियल लाइंस इमेजिनरी लाइंस का है, फिर और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी एक फॉर्मूला है, वो याद नहीं होगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से कर सकते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y एंड सॉल्व इट। अदर देन दिस, इसके भी पहले वो किया था लास्ट क्लास में, m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 के फॉर्मूले थे, sum of the roots and product of the roots. So basically this is the summary of a pair of straight lines, which is everything written on the board. So this is the last part, equation of pair of angular bisectors. Those who have attended last class and this class, I hope everything is coming into place. इतना ही है चैप्टर, few फॉर्मूले, 2 लेक्चर का ही चैप्टर है, खत्म हो गया। ये लिख के हो गया तो बताना। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स, और बीच में और जिनको फॉर्मूले की तरह बता नहीं रहा हूं, अगर इंडिविजुअल दोनों लाइंस ढूंढने के लिए बोले तो ऑफ कोर्स वी विल सॉल्व देम क्वाड्रेटिक जैसा बना के। लिख के हो गया? तुम्हारे क्लास में बहुत कम बात करते हैं, मैंने ऐसे कभी बोला है कि तुम लोगों को, या हर बार बोला है? कोई बात नहीं करता तो तुम लोगों को बोर नहीं होता क्या? क्या क्लास होता है क्लियर, क्या करें। बोर होता है बट फिर भी झेल लेते हो। बाकी क्लासेस, बाकी हाउसेस के साथ कभी अटेंड किया क्या क्लास कोई भी? नहीं सर। अच्छा, यस सर, वो एक बार प्रोजेक्टाइल वाला हुआ था तो उसमें सारे ग्रुप थे। ओ, तो डिड यू रियलाइज दैट दे आस्क मोर डाउट्स और नहीं? यस सर। तो उसमें जो बहुत सारे लोग थे ना, तो ज्यादा डाउट कोई पूछ नहीं रहा था फिर। हाँ सर, मतलब ऐसे शादी थी पूरी। बट लेकिन बहुत बात करते हैं बाकी हाउसेस वाले। सबसे लीस्ट तो पर्पल इंडिगो हाउस वाले। इधर है, रेड ऑन। फाइंड the equation of bisectors, find the equation of the bisectors of the angle, find the equation of the bisectors of the angle, find the equation of the bisectors of the angle between the lines 3x square minus 5xy plus 4y square is equal to 0. Find the equation of bisectors of the angle between the lines 3x square minus 5xy plus 4y square equals to 0. सीधा बोर्ड पे ही है, कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, जल्दी करना है। ओके जनील,
अभी तक किसी का नहीं आया क्या आंसर? फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू 0. That is correct, Siddharth. Thank you. Anyone else who got the same answer? सर इसे फर्दर सॉल्व करना है कि यहीं पे छोड़ देना है? नहीं वही है, पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ढूंढ लिया तूने. अगर इंडिविजुअल कोई ढूंढने के लिए बोले तो यू कैन फैक्टराइज इट, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर. ऑल्सो डिड यू नोटिस जो आंसर आया तुझे सिद्धार्थ, वो दो लाइंस के बीच का एंगल कितना है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑब्जर्व किया क्या? A, H और B है. Just try to substitute here, guys. सर वो एंगल वाला आप क्या बोल रहे थे, नहीं समझ में आया. वो जो एंगुलर बाइसेक्टर का जो तूने आंसर बताया, सर एंगल ऑब्ट्यूज है क्या? नहीं, दो लाइंस के बीच का एंगल एक्यूट ऑब्ट्यूज, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज रहता है. इधर है, पहले आंसर आया कि नहीं? सर आया. क्या है? हाँ सर वो इक्वेशन आ गया सर. फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू 0. Correct. 5x square minus 2xy minus 5y square equals to 0. This is the answer. What I'm saying is, मतलब दो लाइंस गिवन है, उन दोनों का हमने क्या ढूंढा? पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर ढूंढा. ये एक एंगुलर बाइसेक्टर, ये एक एंगुलर बाइसेक्टर. इन दोनों के बीच ये दोनों लाइंस ढूंढे हमने, डॉटेड लाइंस. ऑल्सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज, ये जो एंगुलर बाइसेक्टर्स हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, वो पता है क्या? ये सर बताया था ना आपने स्ट्रेट हाँ, लाइन में. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑब्जर्व करके बोल रहा था. ये +5 है और एक -5 है, मतलब a प्लस बी का वैल्यू 0 है. मतलब ये जो लाइंस है, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इट इज जस्ट इन अकॉर्डेंस विद ईच अदर करके बोल रहा हूँ, कुछ खास नहीं. समझा क्या मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर. ओके, लेट अस वन मोर क्वेश्चन. जल्दी करना, स्पीड बढ़ाओ. फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स. फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन. सर 2x पॉजिटिव में आना चाहिए ना? क्या 2x पॉजिटिव में नहीं आएगा? 2xy नहीं, नेगेटिव में ही आएगा. नेगेटिव में ही आएगा यार. h का वैल्यू नेगेटिव है. h इज -5/2. नहीं सर, लेकिन xy तो फिर पॉजिटिव में आएगा ना, क्योंकि a माइनस बी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाना चाहिए. तो h ये h वाला भी नेगेटिव था ना, ये कह रहा हूँ. कैन यू जस्ट डिक्टेट क्या किया तूने? सर मैंने तो वो जो फॉर्मूला डायरेक्टली उसको अप्लाई किया, -5/2 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस. थोड़ा सा स्लोली बता ना. -5/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर आगे माइनस ब्रैकेट -1 तो x प्लस y. हो गया. हाँ, प्लस एक्स वाई. तू कह रहा है कि +2xy आ रहा है, यही बोल रहा है ना तू बार बार. हाँ सर. लेकिन यहाँ -5x² है ना. अच्छा, तो सर हमने होल से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. हाँ यार अभी कैसे बताऊं. सर वो Okay. देखा ही नहीं पाया. Okay, Radhan, find the equation of a pair of angular bisectors. Find the equation of pair of angular bisectors of x square plus 10xy plus y square equals to 0. Of x square plus 10xy plus y square equals to 0. फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. हाँ, 5 क्यों है? बस बाकी सब सही है. 5 की जरूरत क्या है?
जल्दी करो guys, this is taking really too long for others. I don't even know if you're trying to solve or not. सर यहाँ से तो x इज इक्वल टू y आ जा रहा है। Plus minus. नो सर, 5x² माइनस 5y² को सॉल्व करने पे x इज इक्वल टू y आ जा रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट लेगा तो प्लस माइनस नहीं लगाएगा क्या? सर लगेगा। क्या? ऑफ कोर्स ड्यूड, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आएगा। तो यही तो दो लाइन से, एक y इक्वल टू एक्स एक लाइन है, y इक्वल टू माइनस एक्स एक लाइन है। उसका पेयर ऑफ लाइंस पूछे तो मल्टीप्लिकेशन, ये है आंसर, या ये है, एक ही बात है, सब एक ही चीज है। इधर है, दिस इज द आंसर। लाइक बाकी लोग कुछ एक्सट्रीमली स्लो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट इधर वे आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डन? किसी को डाउट है तो जरूर पूछो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, इफ द एंगुलर बाइसेक्टर्स, if the angular bisectors, if the angular bisectors of the lines, if the angular bisectors of the lines x square minus 2pxy minus y square is equals to 0, if the angular bisectors of the lines x square minus 2pxy minus y square equals to 0 is x square minus 2qxy minus y square equals to 0. Find PQ. Find PQ. If the angular bisectors of the first lines is the second line, find PQ. सर P मल्टीप्लाइड बाय Q ढूंढना है कि P Q अलग से अलग ढूंढना है? P multiplied by Q. P multiplied by Q ढूंढना है। ट्राई करो, 2 मिनट में आता हूँ।
Siddharth, close but wrong. Anybody else? What are you planning to do? क्या प्लान है? क्या करना चाहते हो? सर उसे पहले इक्वेशन फॉर्म में ले आते हैं और फिर आंसर्स इक्वेट कर देते हैं. That is correct, यार सिद्धार्थ. तो क्वेश्चन मेकर ने बोला है कि ये पेयर ऑफ लाइंस का एंगुलर बाइसेक्टर ये है, बट ये पेयर ऑफ लाइंस का एंगुलर बाइसेक्टर ढूंढना तो हमें आता है. एंगुलर बाइसेक्टर्स का फॉर्मूला अगर यूज करेंगे h इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस a माइनस बी इंटू एक्स वाई इक्वल टू 0. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. क्या आया सिद्धार्थ? कैन यू एक्सप्लेन? नेक्स्ट, h की जगह क्या है? सर h in place of h we will write minus p. माइनस p इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस a माइनस b कितना हुआ? minus 2xy is equal to 0. यस करेक्ट. 1 प्लस 1 हो सर जाएगा. आंसर इज -1. दैट इज राइट यार. अभी माइनस पी एक्स स्क्वेयर प्लस पी वाई स्क्वेयर माइनस 2xy इज इक्वल टू 0 आया. ये आया, बट क्वेश्चन मेकर ने बोला है कि ये है, तो ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए. तो फिर क्या किया सिद्धार्थ? सर इक्वेट कर दिया दोनों को. इक्वेट कर दिया. दैट इज इट. एक्चुअली दोनों को इक्वेट कर दिया. a better mathematical term that should be used is कंपेयर किया. कंपेयर करना चाहिए रेशियोस. लाइक एक्स स्क्वेयर का या एक्स स्क्वेयर 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की जगह माइनस पी है, फिर यहाँ पे एक्स वाई के साथ माइनस 2q है, और यहाँ पे एक्स वाई के साथ माइनस 2 है, फिर वाई स्क्वेयर वाले -1/p. ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तीनों भी इक्वल होना चाहिए. बस इन दोनों को ही इक्वल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गेट p into q equals to -1. So this is the answer. This question came in JEE main, exact question. This was the question. एक के एंगुलर बाइसेक्टर दूसरे है, मतलब ऑफ कोर्स इसके अलावा भी बहुत सारे JEE main के क्वेश्चंस किए हमने, बट स्टिल. तुम्हारा ये जो स्ट्रेट लाइंस है मॉड्यूल 2 में है कि मॉड्यूल 3 में है? सर सेकंड मॉड्यूल में. सेकंड मॉड्यूल में. ओके ओके. देखता हूँ थोड़े क्वेश्चंस मॉड्यूल से. मॉड्यूल कितना किया तुम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस का? वेल, ये हो गया डन? Sir, I have a doubt. एक सेकंड. बोलो बोलो, क्या डाउट है? How is it 2 there on हम्म? the left hand side? a माइनस बी. a की जगह 1 है और b की जगह -1 है. 1 माइनस ऑफ -1. Got it. इसमें ना थोड़े एक्स्ट्रा चीजें भी है, बट ठीक है. जो जो रिक्वायर्ड है मैं वो सब दे रहा हूँ होमवर्क. हो गया लिख के ये क्वेश्चन सॉल्व करके? आई मीन
सर होमवर्क है ये? हाँ, तो बेसिकली कितना होमवर्क कर सकते हो? मैं जितना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का दिख रहा है मैं सब देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो जो जेई के रिलेटेड है। पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ना जेई एडवांस में भी था, बहुत पहले 10 इयर्स बैक, तो वो वाले क्वेश्चंस भी अननेसेसरी यहाँ डाले हुए हैं, तो वो सब नहीं दे रहा हूँ मैं। अपडेटेड नहीं है बुकलेट। अरे 1 मिनट। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैंने चैट में कुछ भेजा, प्लीज चेक कर सकते हो? एक सेकेंड। सर मत भेजो, वो कोई अननोन। यस, इतने में सारा चैप्टर खत्म पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का। तुम लोग इतना तो पक्का कर ही लो। दैट आई एम नॉट श्योर साक्षी, मतलब इस हफ्ते के टाइम टेबल में तो नहीं है, और नेक्स्ट वीक आई थिंक मेरा लेक्चर नहीं रहेगा। इधर है, पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। किसी को कुछ पूछना है क्या? सर नेक्स्ट वीक आप नहीं आओगे क्या ऑनलाइन लेक्चर्स में? नेक्स्ट वीक आउट ऑफ स्टेशन,